have a quick revision of yesterday's class. So what we had seen yesterday in the topic ionic equilibrium, it what is the meaning of ionic equilibrium? It is an equilibrium between ions and oppositely charged ions and unionized molecule, है ना। तो ये अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल रहेगा उसमें, और ये अपोजिटली चार्ज आयंस में जो इक्विलिब्रियम होगा उसे कहेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम. सो इट इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल. देन वी हैड सीन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपने कल बोला था, विच इज केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज एन, हाँ, it is known as an electrolyte. An electrolyte can be an acid, a base or a salt, and there are two types of electrolyte: strong electrolyte and weak electrolyte. Strong electrolyte के example acid में HCl, base में NaOH और salt में NaCl. एक एक standard example ही बता रहे हैं. और weak में acid हो जाएगा एसिटिक एसिड, बेस में हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट में हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट में हो जाएगा अमोनियम एसीटेट. सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोलाइट which can be a strong or which can be a weak. Weak can dissociate or ionize to less than 5%. और strong electrolyte क्यों बोलते हैं? Because they dissociate almost completely. और weak क्यों बोलते हैं? Because they dissociate to the extent of less than 5%. Then comes next point is degree of dissociation और आयोनाइजेशन, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं. अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन इज व्हाट? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर. बस इतना है कि इट इज द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और आयोनाइज्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम. तो टोटल नंबर इलेक्ट्रोलाइट के जो अवेलेबल है एट इक्विलिब्रियम, उसमें से कितने डिसोसिएट हो गए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिनोटेड बाय अल्फा. और परसेंटेज डिसोसिएशन ये भी कल हमने लिखा था. परसेंटेज डिसोसिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? परसेंटेज डिसोसिएशन इज अल्फा इंटू 100. अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज डिसोसिएशन मिल जाएगा. परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. नेक्स्ट पॉइंट हमने शुरू किया था एसिड बेस थ्योरीज. एसिड बेस थ्योरीज, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए उसमें एसिड बेस की थ्योरीज फंडामेंटल हमें पढ़ना है. अब इसमें से ये आपको पता है फर्स्ट थ्योरी दैट वाज ऑफ अरेनियस थ्योरी. अरेनियस थ्योरी पता है. एसिड क्या होता है अरेनियस थ्योरी में? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H+ आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ये HCl या HNO3 when they are dissolved in water they gives H positive ion and Cl negative ion in aqueous medium. So acids are those which gives free H+ ion when dissolved in water. Bases are those which gives free OH negative ion when dissolved in water. So this is Arrhenius theory. अब Arrhenius theory के ड्रॉबैक्स क्या क्या है? ड्रॉबैक्स और फेलियर ऑफ अरेनियस थ्योरी. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा ड्रॉबैक अरेनियस थ्योरी का है कि अरेनियस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू एक्वस, दैट इज वाटर मीडियम ओनली. अरेनियस थ्योरी की ये दोनों डेफिनेशन में आप देख रहे हैं
कि मैंने H plus ion obtained in water, OH negative ion when dissolved in water. तो Arrhenius theory is applicable only to the aqueous medium, not to the non-aqueous medium. अब non-aqueous medium भी आपको पता है, organic medium are the non-aqueous medium, लेकिन कोई explanation नहीं, nothing was about non-aqueous medium. Only thing Arrhenius says कि acid gives H plus ion, whereas bases gives OH negative ion in aqueous medium. Okay, it fails to explain acidic nature of hydronium ion. H3O positive ये acidic nature है, it fails to explain. It also fails to explain the basic nature of ammonia. NH3 is basic in nature, ये explain ही नहीं किया Arrhenius theory ने. Similarly, it also fails to explain the basic nature of sodium carbonate. करेक्ट है? तो ये है इसके ड्रॉबैक्स और फेलियर ऑफ Arrhenius theory. To overcome this, we had another theory. We call this as Lorry-Bronsted theory. Second theory for acid and bases, Lorry and Bronsted theory. According to this theory, acids are proton donor. अब H plus ion will be considered as proton and bases are proton acceptor. Something very interesting further coming in Lorry and Bronsted theory. What is that? We will see. तो एक बार फिर से Lorry Bronsted theory, proton donor are acid and proton acceptor are bases. हमने यहाँ लिया acid HCl और बेस है NH3. अब ये एसिड क्यों है? बिकॉज दिस कैन डोनेट अ प्रोटॉन. और ये बेस क्यों बना? बिकॉज दिस कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन. इसने HCl ने प्रोटॉन दे दिया तो वो काय में कन्वर्ट हो गया अब क्लोराइड आयन में, है ना? आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन it get converted to chloride ion. Whereas ammonia has gained a proton, it has accepted a proton, get converted to ammonium ion. Is it clear for all? है ना? HCl ने बेटा प्रोटॉन डोनेट किया और NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें प्रोडक्ट क्या मिल गए? NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. करेक्ट है? अब NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये क्यों आ गए? बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ प्रोटॉन. अब इसी रिएक्शन को जरा रिवर्स करके आप समझिए, है ना? रिवर्स में लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी अमाइंस में भी थी. हाँ जी, अमाइंस में भी थी ये रिएक्शन. हाँ, वहाँ लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी अमाइंस में जो अमोनिया है उसके लिए था. तो अमोनिया इज अ बेस, है ना? तो इसको फिर से आते हैं. अब इसको अगर रिवर्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो रिवर्स रिएक्शन में क्या है? दिस इज NH4 पॉजिटिव, इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है तो ये डोनेट कर सकता है, और डोनेट करेगा तो एक्सेप्ट कौन करेगा? जो डेफिशिएंट इन प्रोटॉन है. ये NH4 plus 1 is rich in proton, it can donate very easily, whereas chloride ion is deficient in proton, it will gain a proton. अब अगर इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो ये NH4 काय में कन्वर्ट हो गया. देखो रिवर्स रिएक्शन दिखा रहा हूं यहाँ पर, है ना? NH4 पॉजिटिव आयन, it has donating a proton and this chloride ion is gaining a proton. Reverse direction में reaction, after donating proton NH4 becomes NH3, whereas chloride after gaining electron becomes HCl. तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है. बैकवर्ड डायरेक्शन में
NH4 पॉजिटिव, ये एसिड हो गया, और वही बैकवर्ड यानी रिवर्स डायरेक्शन में ये बेस हो गया। सही है। अब ये एसिड बेस पेयर बन गई यहां पर, है ना। अब एसिड बेस पेयर कैसे बनी, दैट वी विल सी। एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? एसिड बेस पेयर कैसे बनेगी? दिस इज एसिड 1 HCl. After donating a proton, it get converted to chloride. तो ये Cl माइनस किसकी बेस है? एसिड की बेस है। तो ये एसिड 1, ये बेस 1। वैसे ही यहां पर NH3, ये बेस 2 होगा और ये एसिड 2 होगा। NH3 और NH4 में डिफरेंस काय का है? प्रोटॉन का। NH3 और NH4 में डिफरेंस है प्रोटॉन का। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। सो NH3 और NH4 ये पेयर हो गई ना, इसके बीच में डिफरेंस काय का आ गया? एक प्रोटॉन का। वैसे ही HCl और Cl माइनस में डिफरेंस क्या है? एक प्रोटॉन का। तो वो भी एक पेयर होगा, एंड दे डिफर बाय अ प्रोटॉन नंबर। सो वी कैन गेट एसिड 1 बेस 1, ये 1 पेयर, और एसिड 1 क्या है? HCl। बेस 1 क्या है? Cl माइनस 1। सेकेंड पेयर बनेगी एसिड 2 एंड बेस 2, और एसिड 2 क्या रहेगा? अमोनियम आयन। बेस 2 क्या रहेगा? दिस इज एन एसिड, ये एक प्रोटॉन लूज करेगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग बेस मिलेगा। सही है। तो ये एसिड 2 बेस 2 एंड एसिड 1 बेस 1, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ध्यान रखेंगे, दिस फंडा कम्स ओनली थ्रू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, दिस प्रोवाइड अस अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फॉर दिस एग्जाम्पल। नाउ फाइंड आउट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फॉर द second example. Let us move to the second example. Here we know HCl is an acid. It can donate a proton, and water being a nucleophile can accept a proton. तो water will be a proton acceptor. ये acid 1 हो गया, इसने डोनेट किया, तो ये उसके करस्पॉन्डिंग बेस में कन्वर्ट हो गया। आई एम सॉरी, बेस 1, एसिड 1 बेस 1। लाइकवाइज आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस प्रोटॉन, ये काय में कन्वर्ट हो गया? एसिड में। ये एसिड 2 और ये बेस 2। एसिड 1 बेस 1, यहां भी फिर से पेयर बना लेंगे, एसिड 1 बेस 1 और एसिड 2 बेस 2। चलिए जी पेयर लिखते हैं। एसिड 1 बेस 1, एसिड 1 अगर मैं HCl लिख दूं तो आई कैन राइट वेरी वेल द बेस ऑफ इट। सिमिलरली एसिड 2 अगर मैं हाइड्रोनियम आयन लिख दूं तो इसमें से प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या बचेगा? H2O।
अब आप सिंपल सा, जैसे ये एक नाइट्रिक एसिड है, इसकी आप कॉन्जुगेट बेस बना सकते हो, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं आप। क्या बनेगी कॉन्जुगेट बेस? NO3-1 पॉसिबल है। हाइड्रोजन साइनाइड, इसकी कॉन्जुगेट बेस CN-1 माइनस H पॉजिटिव कर दीजिए आप, यहां से माइनस H पॉजिटिव, तो ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। ये फंडा क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कॉन्जुगेट बेस, सही है। और अमोनिया तो बेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। NH4 पॉजिटिव इज एन एसिड, और इसकी कॉन्जुगेट बेस अगर बनाना है तो NH3 माइनस H पॉजिटिव आयन, तो ये बन गया इसकी कॉन्जुगेट बेस। आ रहा है ध्यान में? तो एसिड में से प्रोटॉन एक निकाल लो, 1 प्रोटॉन। द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय अ प्रोटॉन नंबर। आप जितने भी है एग्जाम्पल और दूसरे भी एग्जाम्पल देखेंगे, सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय अ प्रोटॉन नंबर। जैसे मैं यहाँ पर H2SO4 लिख दूं अपने, तो H2SO4 की कॉन्जुगेट बेस मुझे बनाना है। आई विल -1 प्रोटॉन and HSO4-1 is a conjugate base for sulfuric acid. कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसकी कार्बोनिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस बनानी है, take out 1 proton. So that means this conjugate acid base pair, they differ by a proton number. One can be converted to other. अब अगर ये एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है, तो इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड भी बना सकते हैं बाय एडिंग 1 प्रोटॉन। ये अगर कॉन्जुगेट बेस है तो इस, ये NO3-1 बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हैं बाय एडिंग अ प्रोटॉन। साइनाइड ये एक बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग 1 प्रोटॉन। दैट मीन्स कॉन्जुगेट एसिड बेस कैन बी obtained by transfer of a proton. By adding a proton, base can be converted to conjugate acid, whereas by taking out a proton, taking out a proton from an acid, we get conjugate base. Taking out a proton from an acid, we can get a conjugate base. This is what we call as conjugate acid base pair. करेक्ट है? conjugate acid base pair. अब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्जुगेट बेस वीक रहेगी। स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्जुगेट बेस जो बनेगी वो हमेशा वीक रहेगी। क्यों वीक रहेगी? क्योंकि एसिड में का प्रोटॉन चला गया तो एसिडिक कैरेक्टर तो खत्म हो गया उसका, और जो बचा वो बेसिक नेचर बचा, और बेसिक नेचर उसका वीक रहेगा। इज इट क्लियर? और इसी को तो क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड विल ऑलवेज प्रोवाइड, स्ट्रॉन्ग एसिड विल ऑलवेज प्रोवाइड अ वीक बेस। या ऐसा बोले हम कि स्ट्रॉन्ग एसिड converted into weak base.
एंड वाइस वर्सा, इसी का उल्टा भी, कि वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है, इसका एसिड जो बनेगा कॉन्जुगेट वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ऐसा ही बेस के लिए बोलेंगे कि वीक बेस का जो एसिड मिलता है हमको, वीक बेस का जो एसिड मिलेगा, कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा ना, वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये लॉजिक को भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। This is possible with Lorry and Bronsted theory, because Lorry and Bronsted theory depends upon proton. It depends on proton. We can, for our understanding, we can say that Lorry and Bronsted theory is a protonic theory. Is a protonic theory जिसमें प्रोटॉन का देवन घेवन है, प्रोटॉन का लेना देना है। प्रोटॉन दे दिया तो एसिड, और देने के बाद एसिड काय में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट बेस में। प्रोटॉन देवन दे दिया, प्रोटॉन दिया तो एसिड है, प्रोटॉन देने के बाद वो कन्वर्ट काय में हुआ, कॉन्जुगेट बेस में। वैसा ही बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड में। ओके, तो ये है हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब एक एग्जांपल यहाँ हमने देखा कि वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस टू, है ना, हमने यहाँ पर इसका एसिड बेस पेयर भी लिख लिया था। अब एक और रिएक्शन देखो, थर्ड वाली रिएक्शन, वाटर इज ट्रीटेड विथ अमोनिया NH3। अब अमोनिया इज अ बेस, तो अब ये वाटर क्या करेगा, इट विल डोनेट अ प्रोटॉन, और रादर अमोनिया विल अट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। Ammonia will attract a proton from water, and water will donate its proton to ammonia. When water donates its proton to ammonia, this will act as an acid. After donation of proton, this acid get converted to a base. तो ये दोनों का रिलेशन है acid 1 base 1। Similarly, this is a base since it is accepting a proton and getting converted to an acid 2। तो इसकी भी आप एसिड बेस पेयर बना सकते हो, conjugate acid base pair for this particular example. Let us make example of it. एसिड बेस पेयर बनाते हैं, एसिड 1 बेस 1, एसिड 2 बेस 2। जल्दी बोलेंगे मुझे यहाँ से देख के, एसिड 1 क्या है बेटा, H2O। मैं अगर एसिड 1 यहाँ H2O लिख दूँ, रिएक्शन नहीं भी लिखा तो बेस 1 मैं बता सकता हूँ, माइनस H कर दो तो बेस 1। हाँ बोलिए जी। H2O NH3। हाँ, अब एसिड 2 क्या हो जाए, कहाँ NH3 रे, नहीं नहीं सर, NH4 प्लस। हाँ एसिड 2 बेटा। अब एसिड 2 NH4 प्लस है, तो मैं इसकी कॉन्जुगेट बेस बना सकता हूँ, एक प्रोटॉन माइनस कर दो, NH। 3। NH3 इज अ बेस, दोनों के बीच में डिफरेंस काय का है, प्रोटॉन का।
इसमें से देखो जरा, ये एरो पे -H पॉजिटिव कर दिया तो बेस, और +H पॉजिटिव कर दिया तो एसिड। है क्या ऐसा ही फंडा? ये NH4 में से एक प्रोटॉन माइनस कर दो तो बेस बनेगा। बेस को एक प्रोटॉन दे दीजिए आप, तो बेस काय में एसिड कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होगा। मींस एसिड बेस दे डिफर बाय अ प्रोटॉन नंबर ओनली। सही है। अब ये दो रिएक्शन है ना, ये सेकेंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन, इसमें फोकस करेंगे आप कि जो वाटर है यहाँ पर, here water is acting as a base, here water is acting as an acid. That means water is amphoteric in nature. Amphoteric in nature. You know the meaning of amphoteric nature? जो एसिड के जैसा भी बिहेव करे और बेस के जैसा भी बिहेव करे, we call it as amphoteric nature. Water amphoteric in nature means when water is reacted with acid, it will act as a base. When water is reacted with a base, it will act as an acid. Therefore, water is also amphoteric in nature as per Lowry and Bronsted theory. तो ये हो गया amphoteric nature of water, conjugate acid base pair, and Lowry and Bronsted theory. Now, next theory was proposed about Lewis theory. Lewis theory. और Lewis theory, it is an electronic theory, ऐसा याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक theory. जैसे लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, ये प्रोटॉनिक थ्योरी होगी। प्रोटॉन को हमने यहाँ पर क्राइटेरिया माना और एक्सप्लेन किया, वैसे ही लेविस थ्योरी इज अ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इसमें क्या होता है कि एसिड्स एंड बेसिस, दे आर, एसिड्स कैन शेयर और एक्सेप्ट electron pair. Bases, they can share or donate electron pair. तो डोनेट भी कर सकती है ना। तो लिविस थ्योरी, और याद रखना है तो लिविस थ्योरी में क्या है, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर, याद रखने के लिए। बट साइंटिफिकली हम कैसे बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी, एसिड्स कैन शेयर और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी, बेसिस कैन शेयर और डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बेस कौन सी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डोनेट करने के लिए अपनी बॉन्ड पेयर निकाल के दे देगा क्या, नहीं, बॉन्ड पेयर तो दे नहीं सकता। अगर बॉन्ड पेयर दे दिया तो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर। तो डोनेट कौन सी कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। What do you mean by lone pair? हमको सबको पता है, lone pair is a pair of electron which is not involved in bond formation. तो bond formation में जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं है, वो लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। जैसे मैं ये बेस को ही पहले समझा देता हूँ, अमोनिया इज अ बेस, NH3, because NH3 carries a lone pair of electron on nitrogen atom which it can easily donate, है ना। अब ये वाली इलेक्ट्रॉन पेयर देगा क्या वो, ये NH वाला जो सिंगल बॉन्ड है, कौन सी इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली वो लूज कर सकता है, इजीली डोनेट कर सकता है, द लोन पेयर। सो अमोनिया is having
one lone pair of electron on nitrogen atom. Hence, it can easily donate its lone pair of electron, or it can share its lone pair of electron. Therefore, ammonia is a Lewis base. Okay, तो लिविस बेस का एग्जाम्पल आ गया. अब लिविस एसिड का एग्जाम्पल देख लो. दे आर केपेबल ऑफ शेयरिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. जैसे एग्जाम्पल है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का आप स्ट्रक्चर जब बनाए तो आप क्या देखेंगे कि सेंट्रल बोरॉन इज बॉन्डेड टू 3 फ्लोरीन एटम. करेक्ट है. और 1 कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन पेयर. तो इस तरह से हमारा ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर आ गया. Now, when we place these electrons, what we see that there are only 6 electrons available on boron. Boron central atom carries only 6 electrons. Whereas when we take fluorine, when we consider fluorine, अब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से शो कर रहा हूं, तो फ्लोरीन के पास एक फ्लोरीन को हाईलाइट करते हैं. फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? फ्लोरीन हेलोजन है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. 7 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन, डॉट इलेक्ट्रॉन एक बोरॉन का इसके साथ शेयर कर लिया तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट. ऐसे ही तीनों फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. करेक्ट है. बट व्हाट हैपेंस टू द ऑक्टेट ऑफ बोरॉन? इट रिमेन्स इनकम्प्लीट. ऑक्टेट ऑफ बोरॉन remains incomplete. Therefore, boron can accept or share a pair of electron, and that's why boron trifluoride can be a Lewis base, because we know according to octet theory every atom which is creating a bond should complete its octet or duplet as observed in nearest inert gas. तो नियरेस्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 6. यानी ये डेफिशिएंट. बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 6. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स वो डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन है. और जो डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन है वही तो एक्सेप्ट करेगा या वही तो शेयर करेगा. सो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज ए Lewis base. AlCl3 is a Lewis acid. ZnCl2, beryllium dichloride, all these molecules, they are Lewis acid because they are deficient in electron. they और भी एक टर्म हम बोल सकते हैं, they have incomplete octet. Sir, 1 minute left. Yes beta, they are deficient in electron, and therefore they will act as Lewis acid either by sharing or by accepting electron pair. इसी दो को अपन अमोनिया को यहाँ ले लीजिए आप, NH3 with lone pair of electron, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन है उसको कंबाइन करेंगे तो आपको अब क्या मिलेगा? रिएक्शन में क्या मिलेगा?
यहाँ पर दिख रहा है सभी को. What we are going to get, this lone pair ammonia can share with boron. Nitrogen of ammonia share its electron pair with boron and create a complex molecule. तो ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिल गया. तो इसमें NH3 is sharing donating electron, ये base boron trifluoride accepting and sharing electron pair is an acid, and this is an acid, this is a base according to Lewis theory.